Hello everyone, this is paper first to be part first, and in this video we are going to study about main steps in scientific method, that when our purpose is to make our discipline more scientific, then what are the main steps which will be followed by a researcher, and when they try to make our discipline more scientific, and we are using here the scientific method. So let's understand main steps in scientific method. First one is observation. Empirical study means the observation of the facts, incidents, and it include only such aspects that can be observed. If on this basis new knowledge does not support the old facts, our researchers is always ready to change the study as per those facts. Second one is description. In this step, the observed facts, incidents, and are described thoroughly. Although here also the description can be accepted or rejected according to new facts. Next one is measurement. In case if collected data or observed facts can be measured, the researcher then go for this step. Next one is acceptance or non-acceptance. After completion of above three steps at this level, the whole work or conclusion can be accepted or rejected, depends on whether it is right or wrong. Next one is inductive generalization. At this level, above facts are being used as a factual hypothesis and are being interconnected on the basis of their general virtues or common aspects. Next one is explanation. In this step the accepted facts and incidents are being explained in detail. This is called theoretical hypothesis. Next one is logical deductive reasoning. Here the logic or reason behind the incidents are being used or explored. Logic, reason, and it is quite similar to mathematics while describing the incidents or facts. Next one is testing. Testing of the observed facts is being done in the context of new facts and incidents. If they are not wrong, the conclusions can be accepted or as universal facts. Next one is correction. At this stage, whenever a researcher gets other observations, generalization, and explanations, the facts need correction according to their achievements. Next one is prediction. This steps is possible only when inductive generalization and logical deductive reasoning find suitable or quite similar conclusions for a discipline. Next one is non-acceptance. If the details and facts have not been confirmed while following the aforementioned process, still there is possibility or option to reject them. Tentative assumptions do not require this process because they do not have any impact on the scientific method. आज हम लोग बात कर रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरणों के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसका लक्ष्य हमारे विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक, हमारे सब्जेक्ट को और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो इसके अंतर्गत हम जो वैज्ञानिक पद्धति यूज़ करते हैं उसके मेन स्टेप्स, उसके चरण हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन को में साइंटिफिक मेथड को अपनाने के विभिन्न चरण होते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। अवलोकन मतलब देखना। किन चीज़ों को देखना? हमारे आसपास की जो जितनी इंसिडेंट्स हैं, थिंग्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं उन सबको देखना, उन सब का अवलोकन करना। here we are talking about just only in the context of our discipline। तो जितनी हमारे आसपास में हमारे घटनाएं हो रही हैं उन सबको देखना, और इसके आधार पर यदि हमें नया नॉलेज, हमें नया ज्ञान, नए तथ्य हमें प्राप्त हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि जो पुराने तथ्य हैं अब वो नए तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं या पुराने तथ्य हैं वो अप्रासंगिक हो गए हैं, तो हम लोग जो पुराने तथ्य हैं उनको हटा देते हैं। तो जो पुराने तथ्यों को हम लोग हटा देते हैं, ये केवल इसी चरण की बात नहीं है। हम लोग जितनी ये 10-11 इसके चरण हैं, तो किसी भी लेवल पे हम लोग जो पुराने तथ्य हैं जब कभी हमें ये लगता है कि वो प्रासंगिक नहीं रहे हैं हम उन्हें हटा सकते हैं। तो ये जो पुराने फैक्ट्स को हटाने की जो प्रक्रिया है ये पूरे टाइम यहाँ पर चलती रहती है। नेक्स्ट वन आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। तो जो हमने नए फैक्ट्स, नया ज्ञान हम लोगों ने रिसर्च किया है, जो हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं, अब उनको बिल्कुल डिटेल में लिखना, दैट इज कॉल्ड वर्णन। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट। जो कलेक्टेड डेटा और ऑब्जर्व फैक्ट्स है इनका मापन करना, इनका परिमाणीकरण करना, नए तथ्यों के प्रकाश में इनका मापन एवं परिमाणीकरण करना मेजरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, स्वीकृति या अस्वीकृति। सेम आ जाता है। आप ये देखिए कि ऊपर के जो 3 चरण हमने फॉलो किए हैं, यदि अभी भी चौथे चरण पे जाकर भी हमें ये लगता है कि जो पुराने फैक्ट्स हैं वो प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, यूज़फुल नहीं रह गए हैं, उनमें किसी भी तरीके की चेंजेस की हमें ज़रूरत है, सॉरी
क्योंकि हमें नए तथ्य प्राप्त हो गए हैं, नए हमारा दृष्टिकोण हमें मिल गया है, तो यहाँ पे भी हम उन्हें अस्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडक्टिव जनरलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आगमनात्मक सामान्यीकरण। इस लेवल पर हमने जो फैक्ट्स, जो ऊपर उपरोक्त हमने फैक्ट्स जो एकत्रित किए हैं, वो एक्चुअली फैक्चुअल हाइपोथेसिस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और इस वक्त हम लोग ये देखते हैं, जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण करना, सामान्य तथ्य ढूंढना। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग एक जनरल वर्च्यू, सामान्य तथ्य या कॉमन आस्पेक्ट, सामान्य जो पक्ष होते हैं, हमने अभी तक जितना स्टडी किया है, उनको ढूंढते हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं, एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन होता है मतलब व्याख्या करना या स्पष्टीकरण भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है, और इसे हम लोग सैद्धांतिक परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग, तार्किक निगमनात्मक तार्किकीकरण। तो यहाँ पर जो घटनाएं हैं उनके पीछे जो भी कारण है, तर्क है, रीज़न है, उन सबको एक्सप्लोर किया जाता है, उन सबको ढूंढा जाता है कि कोई भी जो घटना हुई है वो किसी न किसी कारण से हुई है, तो उसके पीछे के कारण ढूंढे जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग लॉजिक भी मान सकते हैं, रीजनिंग भी मान सकते हैं, मैथमेटिक्स भी मान सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिंग आ जाता है। टेस्टिंग मतलब परीक्षण आ जाता है। तो परीक्षण जैसा कि हमें नाम से ही पता है कि इसके अंतर्गत परीक्षण किया जाता है, सही है गलत है, अगर सही है तो उन्हें यूनिवर्सल फैक्ट्स, सार्वभौमिक तथ्यों के रूप में मान्यता मिल जाती है। करेक्शन आ जाता है, मतलब करेक्शन मतलब सुधार करना, सेम आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। तो जो भी हमने अभी तक के स्टेप्स को फॉलो किया है, तो इसके बाद में जो अनुसंधान करता है उसके अंतर्गत ये क्षमता आ जाती है कि वह इसके अंतर्गत हमारे डिसिप्लिन के अंतर्गत, हमारे विषय के अंतर्गत भविष्यवाणी चीज़ों को लेकर कर सके। नेक्स्ट आ जाता है नॉन एक्सेप्टेंस आ जाता है। यदि हम लोगों ने अभी तक जितनी प्रोसेस फॉलो की है, यदि अभी भी ये लगता है कि सही नहीं है, कोई तथ्य गलत है, तो यहाँ पे हम लोग उसको बिल्कुल ही हम लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं, हम लोग उनको अच्छे से चेक करते हैं कि क्या वे सही हैं, प्रासंगिक हैं, और इस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको फॉलो करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।